Okay. Let's start in Django in PyCharm. So first of all, you you can download PyCharm, right? PyCharm download. Yes, this is the PyCharm official website, JetBrain, and go to JetBrain website and download Community Edition, right? You can download Community Edition, right? Students, hello, hello. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. this is the community edition. You can download for pure Python development. You don't need to use professional right now because it is a paid version. So you can download only community edition. You can work with Django in PyCharm. You can download community edition for uh, some academic works. So let's. I have already installed, so I am not explaining how to install, just I can explain where you go and download this PyCharm edition. So it is a jetbrain.com website and go to PyCharm, right? And if you don't know direct website name, so you can googling on your laptop or PC, then you can go to community edition, right? So right now, then you can see this type of environment. See, create a project. So go to file menu, and there are two options, dark theme and light theme. So when you are installing a PyCharm, you can immediately install uh, your python.org, right? Go to python.org, then you can install Python, right, itself. Python itself you can download, right? See, this is the Python, right? You can download Python from here, right? So you get the Python 3.8.5 version, and you can link over here, right? Project interpretation, new virtual environment. Here my virtual environment already I give selection here of a virtual environment, and here a base interpretation. See, this is my base interpretation. Here you have to uh, give the path of Python, right? When uh, PyCharm is only editor, but you can club with the Python, right? You have to give Python right here over here, interpretation or new interpreter. So we need to use new interpreter, so no need to change over here, right? And then create, right? I can create here one project, MCA Django demo, right? Django demo, right? Are you understand? Hello, hello. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now see, creating virtual environment. So here when your project is start, automatically your virtual environment is created. Our virtual environment is created, right? This is our virtual environment. So in PyCharm is a editor for Python programming, Python web programming, research programming, Python image processing programming, right? Whatever you want in Python, you can do. See, here there is a one file. Uh, See, suppose my Python is perfectly run, so you can create one Python hello.py file, right? See, hello.py, and write down print uh, print hello. This is my first file. Then you can right click and run hello, right? Then see, my hello is run. Hello word is getting as a output, right? And you can run from here only, right? And if you want to run, right click on your surface, right? You can run hello,
or otherwise keyword is a, shortcut key of control plus shift plus F10. So my Python is run installed perfectly. Now I want to delete this code. Okay, now we can work with Django. So here now today we are going to learn how to run Django in PyCharm. So our virtual environment is created. Now you go to terminal. Here terminal. See, my terminal is here. See, our virtual environment is created. See, hello student. Hello. Yes. Yes, See, sir. here venv is created. See, our virtual environment is created. Now, just you write down command pip install Django. Okay, right? But I don't need this command. Right? I can install using a setting. Go to file menu and click on setting. Right? There is another way. This is the another way of installing Django program. Go to project, right, and click on interpreter, right. There are two packages installed. Now I can install Django, right. Go to and find out the Django, right. Now you can see Django version, a high-level Python web framework that encourage rapid development and clean pragmatic design 3.1.2. It is a Django, right? So I can install this Django without command, right? It is a GUI way. So install Django, right? Means my Django package is installing. See, there it is take 1 or 2 minutes. Then our Django will install. See here, Django is installing. Right? Can you see? Are you able to see? Yes, sir. ओके मीन्स यहाँ पे जेंगो इंस्टॉल हो रहा है. आप देख सकते हो कि जेंगो एक दूसरी तरह से भी इंस्टॉल होगा. राइट, यहाँ पे वर्जन है, आप वर्जन भी चूज कर सकते हो. राइट, आपका जब आप इंस्टॉल पैकेज करते हो तो बैकएंड में इंटरनेट चालू होना चाहिए, ये कंडीशन है, इतना ही. राइट, तो हमारा जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा. उसके बाद हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे. यस, पैकेज जेंगो इंस्टॉल सक्सेसफुली. राइट स्टूडेंट? हेलो स्टूडेंट, हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, Django is installed. Now close the window. Here Django related and package are coming. Django ASGI RF PY TZ setup of tools SQL parser. So now package Django is successfully installed. Okay. Now here we can create Django, right? Django project. So we need some basic Python code, right? Django admin start project. This is my first command here and paste, right? My web. Okay. Now enter. Django admin start project my web. First, once you install Django, then you can perform this command Django admin start project. See here, our Django is my web folder is coming over here. Just refresh. See my web, right? See, are you able to see? My web is installed, right? Hello, student. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now go to my web. Now go to my web, right. You can enter in my web. Now just perform one command, python manage.py run server, right. That's it, our server is running. Right. This is the two only in PyCharm. When you install the PyCharm, just plenty of command is performed. Our Django is started. Right. Our Django. In previous lecture, we spent 1 or 2 1 hours. Right.
for installing this Django, right? Hello, student. Yes, sir. Okay. So now our Django is completely run, right? Now here there is a setting file, where it is an important file, setting file, right? This one is the very important file. Now uh, our Django is run. So Control C, I can press Control C, right? We Control C. Okay. Now our server is stopped. So refresh this. Our Django server is stopped, right? So again we go to new app, right? This is the main app. Inside the main app you can this is the our main web app, right? Main folder means you can give whatever your name. So main app, right, is created. Now inside the main app you can build another many application, many app, right? So this command is python. You must have in my web folder, right? It means you are in my web folder. Then you can perform another command. See, python manage.py start app. You can give whatever your name. For example, I can give uh, product, right? Product. See, this is my one of my app. See, product app is created. See, student, product is created, right? Here is my view, here is my test, here is my model, right? Here is my app admin. So today we are going to learn how to work with the database and how to work with template. So here is one of template, right? I have created one template folder, templates, right? Templates, right? This is my template folder. Inside the template, whatever our HTML code is index, right? This is the index. Okay, student, are you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. See here, we can create one uh, function. You know how to create function, request and render request and return HTTP response. Wait, hello. HTTP response, right? See, our one of function is created. Now control. Now you want to take one file. Its name is URLs. URLs, right? URLs. Okay, and this is the main URLs. And this product app having one URL. That URL club with this URL. Okay, so here you can control D, right? Control D is the one command. Remove this one. Include product single quotation and dot product dot urls, right? So our uh, product URL is connected with the main URL, right? Includes. So our include is important. So this is our main. Here we have to create this one. Okay, copy and paste. Okay. Now see, when you run our application, there is directly where directly our 1 to 7.0.0 and 8,000 our views, right? Whatever in view, हमारे जो व्यू है ना, उसके अंदर जो भी फंक्शन है
वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, राइट। यहाँ पे व्यूज हम इंपोर्ट कर देंगे, व्यूज व्यूज ओके, डॉट इंपोर्ट एंड व्यूज डॉट, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, इंडेक्स, राइट। यहाँ पे नेम इक्वल, आप नेम में कुछ भी लिख सकते हो आप, हो सके तो सब जगह पे सिंगल कोट की यूज करें, राइट। का नाम जो भी है वो रख दिया, राइट। हमें क्या चाहिए, ये टेम्पलेट के अंदर जो भी लिखा है, अभी ये फंक्शन में जो भी लिखा है हेलो, वो प्रिंट होना चाहिए, राइट। तो हमारा यूआरएल कनेक्ट हो गया, हमारे में जो प्रोडक्ट की जो यूआरएल है वो भी कनेक्टेड हो गई, राइट। और यहाँ पे व्यू में हमने एक छोटा सा एक मैसेज लिखा है, हेलो एमसीए स्टूडेंट, राइट, ओके। नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी क्या करना है, सेटिंग्स फाइल में जाना है, हमारी जो प्रोडक्ट की ऐप बनाई है उसको रजिस्टर कर दो। रजिस्टर नहीं करोगे तो पीछे जाके अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट, right, this is our app, and comma is compulsory because it is a form in dictionary style, right. In square bracket it is a dictionary, right. Now we can run again our server, okay. See, there is one error, uh, index missing requirement request. Hmm, line number 5, okay. See, we don't need to curly round bracket. See our hello, right. Django, here first we see Django interface. Now here we can get our own interface, right. See, whatever message in function we can get over here, right. Students, hello student, Yes, sir. Okay. okay, यहाँ तक आपको समझ में आया ना, कैसे मैंने किया, हेलो हेलो पाइचाम में इतना समझ में आया, समझ में आया, Yes. हेलो। अभी हम टेम्पलेट यानी HTML को यहाँ पे क्लब करेंगे, जैसे ये HTML में कुछ भी लिखेंगे H1, राइट, के हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट, ओके। नाउ ये मैसेज मुझे चाहिए, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स फाइल में जाना है आपको, किसमें जाना है, सेटिंग फाइल में, राइट। गो टू सेटिंग, सेटिंग में जाओ और वहां पे आपका पाथ देना है यहाँ पे। तो पाथ कैसे दोगे, os डॉट पाथ, पाथ os डॉट join डॉट पाथ, राइट। आपको समझ में नहीं आता तो टेम्पलेट, राइट, टेम्पलेट जेंगो, जेंगो लिखो, राइट। और तो हम डेट भी, करंट डेट भी हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे यहाँ पे करंट कुछ डेट होनी चाहिए, राइट। ये बाद में करेंगे, पहले हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट, राइट, टेम्पलेट स्टैक ओवरफ्लो पे ही अच्छा होगा, ओके। कुछ भी नहीं समझ में आया तो स्टैक ओवरफ्लो इज बेस्ट, राइट। सी, दिस इज द path, right.
मैंने आपको ये क्यों बताया कि स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में कुछ इस टाइप के एरर आए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। राइट, हमने तो सेम टू सेम ही लिखा था। यहाँ पे लिख दो सिंगल कोट में टेम्पलेट्स, या स्पेलिंग पहले मेक श्योर करना, टेम्पलेट्स। राइट, ओके, करेक्ट। यहाँ पे ओएस नहीं है तो यहाँ पे ऊपर एक import OS. Okay. Now OS is compulsory. OS library is compulsory. Now see here और टेम्पलेट को कैसे हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे वो मैसेज ही आ रहा है। राइट, तो हमें टेम्पलेट का कहाँ से जाएंगे, पहले व्यू में जाना है। राइट, व्यू में से ही कुछ भी करोगे आप, व्यू में से ही करोगे। राइट, यहाँ पे हैज यानी कमेंट है, हैज को आपको हैज कीवर्ड कमेंट के लिए यूज होता है। रेंडर, देखो रेंडर के अंदर क्या क्या है, रिक्वेस्ट है, टेम्पलेट नेम है, कंटेक्स्ट है। राइट, जो भी है वहां पे लिखो। राइट, तो पहले हमें रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम क्या है हमारा, इंडेक्स सी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कुछ भी है उसके अंदर लिख दो। राइट, ओके, अभी चेक करते हैं कि हमारा मैसेज आ गया। यस, आवर मैसेज इज गेटिंग फ्रॉम टेम्पलेट सी। टेम्पलेट हमने क्लब करना सीख लिया। राइट, यहाँ पे जो है टाइटल, तो ये टाइटल मुझे कहाँ से चाहिए, वो यहाँ से चाहिए। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो कुछ भी टाइटल, ये टाइटल कहाँ से आना चाहिए, मेरा व्यू में से आना चाहिए। तो एक मैं टाइटल ले लेता हूँ, टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू माई माई वेबसाइट। राइट, सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा, टाइटल इज इक्वल टू कोलन, सिंगल कोट में लिखेंगे टाइटल कोलन टाइटल। ओके, डन। સર ઉપર ઇક્વલ ટુ ને બદલે માઇનસ થઈ ગયેલું છે ટાઇટલ પાસે. यहाँ पे इक्वल टू, ओके, सी, कोलन इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, ओके, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो सब डिक्शनरी स्टाइल है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, तो जो टाइटल में लिखा होगा ना वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। राइट, माई वेबसाइट। राइट, तो हमारा ये काम हो गया। हमने सीख लिया आज कि कैसे HTML को यूज कर सकते हैं। राइट, अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे। राइट, एम्प्लॉय का टेबल, यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं, क्लास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल। राइट, प्रोडक्ट टेबल मॉडल डॉट कोलन जी। यहाँ पे हम कौन सा वर्क करेंगे, मॉडल बनाएंगे। मॉडल कैसे बनाएंगे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम डेटाबेस कनेक्ट, अभी हम क्या सीखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी। राइट, डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखने के लिए ये इस टाइप का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। राइट, राइट, मॉडल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले का, यहाँ पे एक आईडी आईडी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मॉडल्स डॉट मॉडल। राइट, और आपको सीखना पड़ेगा अभी कि मॉडल के अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम। ओके, प्रोडक्ट का नेम किस में होना चाहिए, पेयर, मॉडल
model dot models, see here models dot char, ये सब डेटा टाइप है आपकी। सी कैर फील्ड, कैर फील्ड में जाओ, यहाँ पे देखो कैर फील्ड में क्या है, कैरेक्टर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ और हेल्प। आपको कुछ भी चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो, राइट। तो मैं ये कॉपी आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, राइट। हेल्प टेक्स्ट यानी जब भी आप रन करोगे तो उसके अंदर हम 100 लेते हैं, 50 ले लेंगे। यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, ओके। सी प्रोडक्ट नेम में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल यूजर को बताना है सीपीयू, सीपीयू, कीबोर्ड, कीबोर्ड, राइट, लाइक एक्सेट्रा। सी तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट, यहाँ पे एक स्पेसिंग होनी चाहिए और तो यहाँ से लाइन एरर जो है वो निकल जाएगी, राइट। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हेलो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, अभी क्या चाहिए, दूसरा क्वांटिटी, क्यू टी वाई इज इक्वल टू मॉडल, राइट, मॉडल डॉट इंटीजर, इंटीजर फील्ड है तो भी इसमें कुछ नहीं लिखो, राइट। अभी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्राइस, प्राइस, प्राइस क्या होनी चाहिए, मॉडल डॉट, मॉडल में प्राइस क्या होनी चाहिए, हेलो स्टूडेंट, प्राइस भी इंटीजर चलेगा, डेसिमल फील्ड, राइट। हेलो, हेलो स्टूडेंट, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ओके, ओके, यहाँ पे भी इंटीजर, ओके। एक तो प्रोडक्ट का नाम आ गया, क्वांटिटी और प्राइस, ओके, ओके। सी नाउ यू कैन चेक, दिस इज वन मोर थिंग हियर, एक फंक्शन ले लो, उसके अंदर जो भी नाम होगा वो प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे विजिबल होना चाहिए, राइट, ओके, एडमिन साइट के ऊपर। ये एक सी एक हमने टेबल, डेटाबेस में जैसे टेबल बना देना वैसा एक क्लास बनाया हमने, मॉडल, उसको बोलते हैं मॉडल उसमें, राइट। मॉडल बनाने के बाद एक फंक्शन, फंक्शन का एक फंक्शन, एक फाइल लेते हैं फंक्शन, राइट, सॉरी फॉर्म, फॉर्म्स की एक फाइल बनाते हैं, तो फॉर्म एक आ गया, तो एक फॉर्म चाहिए मुझे, तो फॉर्म कैसे बनेगा तो वो भी हम देख लेंगे, राइट। ये फॉर्म जो है, यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म जो भी है इंपोर्ट किया जेंगो, फ्रॉम जेंगो डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट मॉडल्स, फॉर्म डॉट मॉडल्स इंपोर्ट हमारा जो कौन सा है, प्रोडक्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल को कॉल कर लो, प्रोडक्ट टेबल, यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने असाइन कर दिया, मॉडल फॉर्म है, यहाँ पे कौन सा है, ये फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। देखो ऑटोमेटिकली डिजाइन सब कुछ बन जाएगा, आप समझ में आ जाएगा कितना इजी है, कितना टास्क, बहुत जबरदस्त टास्क है, राइट। हम इंडेक्स पेज पे है एक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्म बनाएंगे। सी देखो ये फॉर्म हमारा एक प्रोजेक्ट में हमारा क्या हुआ, फॉर्म पहले मॉडल बनाया, राइट, मॉडल आ गया, उसके बाद फॉर्म क्रिएट की, फ्रॉम मॉडल को फॉर्म के अंदर ले लिया और वो मॉडल को एक ऑब्जेक्ट में अंदर असाइन कर दिया, क्लास मेटा, राइट, क्लास प्रोडक्ट फॉर्म मॉडल्स डॉट मॉडल फॉर्म कोलन, उसके अंदर एक नेस्टेड क्लास है, उसका नाम है मेटा, राइट, ऑटोमेटिकली। और उसकी सभी फील्ड मैंने ऑल, सभी फील्ड के लिए क्या लिखा मैंने, ऑल,
ऑल कैसे लिखा है, सी देखो मैंने ऑल कैसे लिखा है, सी अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। तो ये ऐसे हमने क्या किया, ऑल ऑल फील्ड है, जो भी मॉडल है उसकी सभी फील्ड मुझे फॉर्म के अंदर चाहिए। फॉर्म यानी क्या है, एचटीएमएल का जो फॉर्म है ना वहां पे चाहिए, राइट। अभी मुझे ये यहाँ पे क्लियर, हमारा डेटाबेस कौन सा है अभी, डीबी अंडरस्कोर एस्कुलाइट 3 है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। सी समझ में आ रहा है ना, हेलो स्टूडेंट, हेलो यस सर। हाँ सर। हेलो, समझाई छे। हाँ सर। अभी उसके अंदर हम एक छोटा सा यूआई बनाएंगे। यूआई में क्या रहेगा, ये हमारा सिंपल एक फॉर्म ले लेते हैं। ये फॉर्म है, यहाँ पे एक फॉर्म में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये फॉर्म मेथड क्या है, मेथड, राइट। इसके नीचे ये CSRF अंडरस्कोर टोकन लिखना पड़ेगा। ये क्या है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी हम ये सिंपल जो इनपुट टैग है, इनपुट आपको मालूम है तो कोई भी सबमिट बटन होता है फॉर्म के ऊपर, टाइप क्रिएट, अभी इसको भी निकाल देते हैं, राइट। सिंपल हमारा एक इनपुट हो गया। तो CRLF टोकन क्या है, तो हम थोड़ा गूगल कर लेते हैं, राइट। के CSRF टोकन का मतलब क्या होता है जिंगो के अंदर, राइट। तो उसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं कि सी, हम जैसे जरूर यूज टू हो जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery protection, right? It is a middleware and template tag provide easy to use protection against the cross-site request forgery. This type of attack occur when a malicious website contain a link, right? वो अभी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, थोड़ा कोई भी अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्शन होगा किससे, CSRF। तो जेंगो कितना पावरफुल है, आपका जो पोस्ट पुट और डिलीट का जो ऑपरेशन होगा यहाँ पे फॉर्म पे, तो वो पहले से ही प्रोटेक्शन दे देगा, राइट। तो ये टोकन का मतलब क्या है, CRLF का, समझ में आया ना। हेलो, प्रोटेक्शन के लिए CSRF उसका फुल फॉर्म क्या है, हाँ। हेलो स्टूडेंट, हेलो, हेलो स्टूडेंट, हेलो। सर। हाँ सर। हाँ, CSRF का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस साइट प्रोटेक्शन, राइट। समझ में आया ना। तो ये प्रोटेक्शन एक मिडलवेयर है, मिडलवेयर जब भी आप कुछ भी लिखोगे तो ये लिखना ही पड़ेगा फॉर्म, राइट। अदरवाइज आपको एरर रेज होगी, राइट। तो ये कंपलसरी लिखना है। तो ये हो गया। अभी देखो, अभी मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये डिजाइन यहाँ से आ जाएगी। डिजाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी आपको, राइट। अभी व्यू में जाएंगे, व्यू के अंदर एक फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म को यहाँ पे कॉल करना है, राइट। यहाँ पे कोमा फॉर्म, सिंगल कोट में क्या लिखेंगे, फॉर्म, राइट, कोलन, यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पे जो हमने मॉडल वो फॉर्म बनाया ना, वो फॉर्म यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, डॉट इंपोर्ट फॉर्म। इंपोर्ट कौन सा अभी फॉर्म लिया हमने, प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। समझ में आया ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कॉपी कर लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हमें बन गया, राइट। और ये पी फॉर्म जो है वो उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँ, राइट। और ये HTML पे चला जाएगा। ये फॉर्म कहाँ पे चला जाएगा, ये जो भी इसमें लिखेंगे वो HTML में एक्सेस हो सकता है। तो हम इसके अंदर फॉर्म, ये यहाँ पे आ गया देखो, राइट। तो पहले हमने क्या किया, मॉडल बनाया, राइट। मॉडल को कहाँ लिया, फॉर्म में लिया। वो फॉर्म कहाँ पे कॉल किया मैंने, व्यू में। व्यू में यहाँ पे फॉर्म आ गया। ये फॉर्म कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ पे, और यहाँ पे ये HTML में चला गया। तो ये देखो, राइट। उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C, राइट। यहाँ पे मैंने Ctrl+C कर रहा हूँ। तो ये पाइथन, पाइथन का क्या होगा, मेक, ये बहुत ध्यान से देखना। हेलो स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है,
कमांड दिखाई दे रहा है? हेलो, आर यू? Yes, sir. सर मैनेज डॉट पी वाई, वहां पे क्या लिखना है? मेक माइग्रेशन। क्या लिखना है? मेक माइग्रेशंस, राइट। मेक माइग्रेशन करेंगे तो हमारा क्रिएट मॉडल प्रोडक्ट टेबल ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो गया। समझो, हमारा डेटाबेस का नाम ऑलरेडी क्लब है, यहाँ पे डीबी अंडरस्कोर एसक्यूलाइट। वो कहाँ से ऑटोमेटिकली क्लब है? ये सेटिंग फाइल में जाइए, आपका डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक ये जेंगो की कोई भी एप्लीकेशन है, एक डेटाबेस को कनेक्ट रखता है। ये देखो, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है? इंजन का नाम क्या है? एसक्यूलाइट। और बेस डायरेक्टरी क्या है? डीबी अंडरस्कोर, एक डेटाबेस कनेक्टेड है। उसकी जगह पे, ये डेटाबेस की जगह पे आप मोंगोडीबी लिख सकते। हेलो स्टूडेंट, हेलो। Yes, यस sir. Yes, sir. हाँ, समथिंग प्रॉब्लम इन इंटरनेट। सो अभी अभी देखो, यहाँ पे इसके ऊपर किया तो हमने ये डेटाबेस, राइट। हेलो, सी दिस टाइप ऑफ, फर्स्ट इज माय एसक्यूलाइट, सेकंड इज पोस्टग्रे। देखो पोस्टग्रे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये इसका कनेक्शन स्ट्रिंग दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हो माई एसक्यूएल, राइट। दिस इज दैट इज द वे यू कैन कनेक्ट। पोस्टग्रे की जगह पे आप लिख दो माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे माई एसक्यूएल भी आप कनेक्ट कर Sir, सकते हो, screen share करो ना. राइट। Screen तो share. ये yes, अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, स्क्रीन, आर यू विजिबल माई स्क्रीन? Yes, sir. तो देखो, पोस्टग्रे अभी एसक्यूलाइट है, तो एसक्यूलाइट की जगह पे हमें पोस्टग्रे करना है, तो पोस्टग्रे भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख सकते हो माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल कनेक्ट हो जाएगा, उसका डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम और ये सब यहाँ पे माई एसक्यूएल भी कनेक्ट कर सकते हो। हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको माई एसक्यूएल, अभी आपको इतना देखो, माई एसक्यूएल की जगह पे यहाँ पे इंजन का नाम बदल लेना है। देखो, कोरेकल है, कोरेकल, जेंगो में बैकएंड, यहाँ पे माई एसक्यूएल ले लो तो माई एसक्यूएल आ जाएगा। सी, तो ये बेसिक जो है वो डेटाबेस रिलेटेड है। अभी एसक्यूएलाइट से ही कनेक्ट करेंगे। पहला कमांड हमने कौन सा परफॉर्म किया था? पाइथन मैनेज डॉट पीवाई मेक माइग्रेशन। तो अभी माइग्रेशन हुआ सिर्फ, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? माइग्रेट, राइट। तो माइग्रेट कर दिया, तो माइग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ। हेलो स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो, Yes, sir. हेलो हुआ ना? Yes, sir. देखो ये सब
अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ, और आप क्या लिखो, रन एक सुपर यूजर क्रिएट करो, राइट। उसके बाद क्या करना है, सुपर यूजर क्रिएट करो। तो सुपर यूजर कमांड कौन सा है, ये, राइट। ये एडमिन पैनल के लिए एक सुपर यूजर क्रिएट करो, राइट। तो मैंने एक सुपर यूजर पाइथन मैनेज डॉट पाई पाई यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर एंटर करो। तो एक आपको पूछेगा कि यूजर नेम क्या रखना है। तो आई कैन गिव माय नेम रौनक, राइट, एंड रौनक @gmail.com। आप कुछ भी ईमेल बना के दे दो यहाँ पे, और पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, रौनक @12345 एंटर, रौनक @12345 एंटर, राइट। तो यहाँ पे सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या करना है, राइट। आप जब भी डेटाबेस में मॉडल क्रिएट करो तो आपको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना पड़ेगा। तो मैनेज डॉट पी वाई, उसके बाद रन करना है रन सर्वर, ओके, रन सर्वर। आपको समझ में आ रहा है ना? अभी देखो ये ऑटोमेटिकली फील्ड आ गई। हेलो स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, फील्ड का नाम आ गया ना यहाँ पे ऑटोमेटिक। हमने किसी जगह पे HTML कोड नहीं लिखा है। हेलो स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. प्रिया, हेलो, यस सर। मॉडल हेलो। लिखते हैं 200। यस यस, आई कैन हियर यू। ओके, नाउ क्लिक क्रिएट। तो मैंने क्रिएट कर दिया, राइट, क्रिएट किया। तो एक यहाँ पे जो है टेम्पलेट में चले जाओ, यहाँ पे लिखो, व्यू के अंदर जाओ, टेम्पलेट में हमारा एक अभी जो आप देख रहे हो वो कैसे हुआ, क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट मिल गया। तो अभी प्रोडक्ट को मुझे क्रिएट करना है, राइट, क्रिएट प्रोडक्ट। अभी आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, राइट। अभी सिंपल आप देखो कि प्रोडक्ट को मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एडमिन पैनल में। हेलो स्टूडेंट, हेलो, यस सर। अभी यहाँ तक સર વોઇસ નહીં આવે તમારો। समझ में आया कि ये फॉर्म कैसे पूरा सेम। वॉइस, माय वॉइस इज ऑडिबल, हेलो, वॉइस इज ऑडिबल, हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हेलो sir. स्टूडेंट। स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, हेलो स्टूडेंट। नहीं दिख रहा सर। हेलो। ओके, हाँ बस sir. यस यस, अब નથી દેખાતું। Yes, ओके sir. ओके, દેખાય सी, છે. okay, I remove stop presenting, and I again your entire screen is connected, right. Now it is visible. You are presenting, yes, now it's Yes. visible. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Okay, Ronak, and password is capital Ronak @12345 सी, ये जो एडमिन पैनल है वो ऑटोमेटिक बन जाती है, राइट। अभी यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, राइट, यहाँ पे एक प्रोडक्ट चाहिए।
यूजर और ग्रुप ऑटोमेटिकली वो जेंगो का एडमिन पैनल है, ये वो ऑटोमेटिक देता है, ये जेंगो का ऑटोमेटिक होता है, राइट। हमें एडमिन पैनल क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, उसका लॉगिन सेशन वो सब हमें हैंडल नहीं करना, और वो ऑटोमेटिकली चेंज पासवर्ड हम का कोडिंग हमें नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये यहाँ से ऑटोमेटिक आता है, राइट। तो हम होम पे एक प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट वो कहाँ से आएगा, तो हम जाएंगे एडमिन में, सी एडमिन में जाओ और लिखो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एडमिन को रजिस्टर करना, एडमिन पैनल में वो रजिस्टर कर दो। तो रजिस्टर कैसे करते हैं, तो उसका मैं आपको कोड बता रहा हूँ, राइट। ये कुछ भी हमें रजिस्टर करना है तो ये कॉपी कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखूँ फ्रॉम फ्रॉम डॉट मॉडल, राइट। इंपोर्ट हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल आ गया यहाँ पे, ओके। ये प्रोडक्ट टेबल हमारा हो गया। उसके बाद एडमिन डॉट साइट रजिस्टर, एडमिन साइट के ऊपर ये प्रोडक्ट को रजिस्टर कर दो, प्रोडक्ट टेबल को, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, राइट। जब भी ये रिफ्रेश होगा यहाँ पे ये पेज को भी रिफ्रेश करो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख गया, समझ में आया, प्रोडक्ट आ गया ना। हेलो स्टूडेंट, यस हेलो। सर। यस सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल आ गया है। देखो प्रोडक्ट में अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐड, देखो यहाँ से एक प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, मॉडेम, राइट। यहाँ पे 2 क्वांटिटी आ जाएगा 2000 एंड सेव। सी जो एडमिन साइड पे हमने कुछ भी कोडिंग नहीं किया तब भी हमें डेटा दिखाई दे रहा है, एडमिन ऐड अपडेट डिलीट सब आ गया, राइट। हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 3000 लिखो, राइट, और सेव करो, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली वो हो गया, देखो, राइट। तो ये जो है एडमिन पैनल जैसे हमने जो बनाया, वो एडमिन पैनल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो मेन एडवांटेज जेंगो का ये मार्केट में क्यों ज्यादा चल रहा है कि वो एडमिन पैनल ज्यादा हमें खुद का एडमिन पैनल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अभी हमें क्या करना है, हम यूजर साइट पे जाएंगे, यूजर साइट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर साइट से यहाँ पे प्रोडक्ट एंटर करेंगे और सबमिट क्रिएट प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट क्रिएट होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम कोडिंग करेंगे, प्रोडक्ट को मुझे क्रिएट करना है, मुझे एक प्रोडक्ट सिंपली क्या करना है, क्रिएट करवाना है। तो मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, राइट। एक फंक्शन बनाऊंगा क्रिएट प्रोडक्ट के लिए, व्यू में जाओ, व्यू के अंदर एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम लिख दो प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, राइट, क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट, राइट, यहाँ पे ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट सेव का कोडिंग है, राइट। जैसे हम सेव करते हैं तो रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए। अभी रीडायरेक्ट कहाँ पे कराऊं, मैं रीडायरेक्ट यहाँ पे करवा हूँ, राइट। ये जो रिटर्न है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, ये निकाल दूँ, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट। इंडेक्स पेज पे वापस आना है और यहाँ पे क्या कौन सा टेबल ले लूँ, प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। तो पहले क्या है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट हमारा मेथड है, यहाँ पे फॉर्म पे जो भी डेटा फिलअप करेंगे वो पोस्ट के थ्रू मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम आ गया, राइट। और हम सेव करेंगे तो ये क्रिएट, ये जब क्रिएट किया तो उसको यूआरएल में लिखना पड़ेगा, राइट। आप यूआरएल में नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंपल व्यू डॉट एड प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ रिक्वेस्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में क्रिएट प्रोडक्ट, ओके, क्रिएट प्रोडक्ट सेमीकोलन कोमा, राइट। तो हम क्रिएट करते हैं और एक रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ये हो गया, ओके। मॉडेम, मॉडेम की जगह पे मैं क्या लिखूं, केबल, राइट, केबल, केबल की क्वांटिटी, केबल की जगह पे कुछ और लिखते हैं, माउस,
माउस। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना? हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। यस सर। ओके, यहाँ पे अप एंड डाउन भी कर सकते हो। देखो प्राइस है माउस का 1800 एंड क्रिएट। ओके, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो कुछ क्रिएट हुआ, राइट? समझ में आ रहा है ना? सेव। तो देखते हैं हमारे डेटाबेस में। देखते हैं हम डेटाबेस में गिरा कि नहीं गिरा, वो देख लेते हैं, राइट? अभी यहाँ जस्ट अ मिनट। हेलो सर। हाँ, यहाँ पे अभी डेटा हमें नहीं मिले हैं, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्यू में चले जाओ वापस, प्रोडक्ट, यहाँ पे सेव इंडेक्स, राइट? जब भी सेव करते हो तो डेटा सेव होना चाहिए, प्रोडक्ट। तो सेव का कोडिंग, ये जो क्रिएट है ना, यहाँ से क्लब करना पड़ेगा कुछ जगह पे, राइट? हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. हम्म, ओके। पहले हमने मॉडल क्रिएट किया, फॉर्म क्रिएट किया, यूआरएल, यूआरएल में ये क्रिएट प्रोडक्ट का भी लिख दिया, राइट? तो यहाँ पे इंडेक्स पे हमें सिर्फ इंडेक्स पे हमने फॉर्म बनाया है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्म होना चाहिए, सेव होना चाहिए, राइट? हमारा लॉजिक ये बन गया है। तो यहाँ पे एक और मेथड भी हमने क्रिएट करवा दी है, राइट? ये जो है यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम जो नल होना चाहिए, राइट? तब देख लेते हैं, राइट? यहाँ पे ऐड इन जेंगो, राइट? जेंगो ऐड record इन जेंगो। सी आप, हाँ, रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है वो सिस्टम में देख लेते हैं, राइट? प्रोडक्ट और स्टैक ओवरफ्लो में भी आप जा सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, राइट? पहले हमारे पास एक सेव, सिंपल सेव करते हो तो डेटा तो सेव हो जाएगा, राइट? स्टोर करोगे तो स्टोर भी हो जाएगा, लेकिन यूजर डिफाइन स्टोर कैसे करना है? एक हमारे पास पहले ये जो है, जस्ट अ मिनट, फॉर्म पे से हमें डेटा मिला, वो डेटा को वैलिडेट किया मैंने। वैलिडेट करने पर के बाद उसको डायरेक्ट सेव करना है, ये कमेंट रख देते हैं, राइट? सेव फॉर्म डॉट सेव, राइट? सेव करने के बाद मेरा पेज वापस वहाँ पे ही आ जाना चाहिए, पेज पे, राइट? तो इतना तो हो गया है हमारा। तो ये देख लेते हैं इसमें सेव कैसे करते हैं, राइट? एमपी सेव। देखो मैंने सेव का कोडिंग पहले बनाया है, सी यहाँ पे एडिट, ऐड रिकॉर्ड, ओके, ये सेव का कोडिंग चलेगा। ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे मेथड में आ जाएगा हम प्रोडक्ट फॉर्म सेव, राइट?
एक पेज बना देंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में कुछ भी लिख देंगे, रिकॉर्ड सेव्ड, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो होगा तो वो ब्लैंक पेज आना चाहिए, तो प्रोडक्ट का ब्लैंक पेज मिल गया, तो हमें यहाँ पे जाना है इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स, राइट, इंडेक्स पेज सी, ये पहला पेज आ गया। यहाँ पे लिखते हैं माउस, यहाँ पे दो क्वांटिटी 2000 और यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट। कुछ हुआ नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम है, हमारा डेटा सेव नहीं हुआ है अभी, राइट। और उसका देखना है हमें, यहाँ पे हो जाना चाहिए, जो डेटा सेव होता है तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम है हमारे कोडिंग में। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐड करवाएंगे यहाँ पे शो लिस्ट, राइट, ऐसे लिस्ट भी है, सक्सेसफुली पेज भी है हमारे पास। और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे ऐड का एक्शन पास करना पड़ेगा, सी, यहाँ पे एक्शन में पास करूंगा ऐसे हमारे प्रोजेक्ट में, ऐड का एक्शन, जो देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आती है ना, वो किसके लिए आता है, दो ही स्पेस होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, राइट। तो ये हमारा हो गया, इसके यहाँ पे मैं एक्शन पास करूंगा, तो ये एक्शन पे रीडायरेक्ट होगा। एक्शन यहाँ पे ऐड क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, राइट, ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। तो ये ऐड प्रोडक्ट को हमें कहाँ पे बना, यूआरएल में लेना पड़ेगा, यूआरएल में नहीं होगा तब तक वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट क्रिएट की जगह पे ऐड प्रोडक्ट, ओके। और ये हमारा कोडिंग जो है, सी, पहले के क्या किया, इफ दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट वी नीड टू प्रोसेस द फॉर्म डेटा। हेलो स्टूडेंट, हेलो, 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 Yes, sir. ओके। उसके बाद क्रिएट अ फॉर्म इंस्टेंस, इट विद द डेटा फॉर्म, पॉपुलेट होगा डेटा उसके अंदर होगा, तभी उसको वैलिडेट करना है, सेव करना है और रीडायरेक्ट करके ये मैसेज प्रिंट करना है, राइट। समझ में आ रहा है ना, उसके विदाउट जो पॉपुलर डेटा हो गए ही नहीं, तो डायरेक्ट इफ गेट मैटर एनी अदर मेथड वी विल क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म, पहले हमें ब्लैंक फॉर्म दिखना चाहिए, राइट, ओके। ये हो गया हमारा काम, इसको अभी जरूरत नहीं है तो कमेंट कर दो, कमेंट मल्टीपल कमेंट कंट्रोल स्लैश लिखोगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल कमेंट आपकी बन जाएगी, राइट। ये आपका पहला फॉर्म आ गया, राइट। फॉर्म के अंदर मैं क्या लिखूं अभी, माउस, माउस, उसके बाद माउस की जगह पर पेन ड्राइव लिखता हूँ, पेन ड्राइव, ओके। पेन ड्राइव दो, कितने की होगी, 800 रुपया, राइट। क्रिएट, देखो रिकॉर्ड सेव, समझ में आया ना मेथड का, ये क्या हुआ, हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। तो हम देख लेते हैं कि इसमें आया कि नहीं आया। यस, पेन ड्राइव इज एंटर, सी, आपको समझ में आया ना डेटा कैसे सेव हो गया हमारा डेटा, यस। हाँ, डेटा मैंने सेव करके बताया, राइट। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि इसको एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इसकी जगह पे हम सिंपल एक एनवायरनमेंट ले लेते हैं, जैसे एक फॉर्म बनाया तो फॉर्म ऐड बटन पे जैसे रिकॉर्ड सेव हुआ, तो यहाँ से हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैंने रीडायरेक्ट करूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, कौन से, हेलो स्टूडेंट, 2 मिनट, हेलो, बस मजा, मैं તમને ફોન કરું થોડીક વાર રહીને, લેક્ચરમાં છું। हेलो स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक में ये थोड़ा लिख लो, हेलो, ये कोडिंग ऐड बटन का, राइट। आई विल कम इन 5 मिनट।
हेलो प्रिया, हेलो हेलो। हाँ सर। ओके, सो ये हमारा हो गया। अभी हम डेटा डिस्प्ले करेंगे। जैसे हमें कोई डिस्प्ले वाला है, उसके अंदर सिर्फ डेटा डिस्प्ले करना है। सी, तो हम एक टेबल लेते हैं। टेबल टेबल के अंदर टी आर के अंदर PD, टी एच के अंदर हम क्या सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, आईडी, सिर्फ आईडी लेते हैं। और डी, प्रोडक्ट नेम। और उसके बाद क्वांटिटी, QTY। और क्या चाहिए, प्राइस चाहिए मुझे, तो प्राइस। ओके, तो उसके नीचे मुझे लूप के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लूप ले लूंगा। राइट, फोर सी। यहाँ पे मैं लूप के अंदर डेटा कैसे आएंगे स्टूडेंट? हेलो, आप बेसिक कुछ प्रोग्राम किए होंगे ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, लूप के अंदर डेटा चाहिए हमें। तो ये लूप के अंदर मैं थोड़ा आपको डिस्प्ले बुक लिस्ट चाहिए, बुक के अंदर लिस्ट चाहिए। तो इस तरह से मैं कोडिंग करूंगा, कॉपी। राइट, ये मुझे कॉपी करना है। राइट, बुक के अंदर जो भी हम लिखते हैं, राइट, तो यहाँ पे चाहिए इसके अंदर सी, कॉपी। ऑथर, इसके अंदर परसेंटेज, कॉपी। फॉर लूप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से? अभी ऑथर, तो उसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोड, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स। क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट। ओके, एक प्रोड का मतलब यहाँ पे प्रोड आईडी, यहाँ पे आ जाएगा प्रोड, हम प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे डी, प्रोडक्ट के नेम के बाद क्या होगा हमारा? नहीं समझ में आया तो ये प्रोडक्ट में जाओ, क्वांटिटी, QTY। ये QTY को यहाँ पे लिखो, QTY। यहाँ पे लिखो, मॉडल में जाओ और लिखो प्राइस। कॉपी करो प्राइस को, यहाँ पे ले लो, डिस्प्ले प्रोडक्ट के अंदर प्राइस। तो हमारे सभी चीज आ गई, आईडी, प्रोडक्ट, वो सब आ गया। ओके, डन। अभी इसके नीचे टेबल को क्लोज किया। टी आर स्टार्ट है तो टी आर को क्लोज भी करना पड़ेगा। राइट, टी आर को क्लोज करो। ओके, डन। इतना हमारा बन गया। हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो। यस सर। ओके, तो अभी प्रोडक्ट हमें लाना है ये यहाँ पे। तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग? डिस्प्ले प्रोडक्ट। राइट, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट का बनाओ। यहाँ पे एक डिस्प्ले प्रोडक्ट तो ऐड करो एक का डेफ डिस्प्ले प्रोडक्ट। राइट, यहाँ पे रिक्वेस्ट, राइट, कोलन। यहाँ पे सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करना है। राइट, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे उसका फॉर्म, यहाँ पे रिक्वेस्ट पे कहाँ पे जाना पड़ेगा? डिस्प्ले प्रोडक्ट, HTML है। यहाँ पे हमें डेटा चाहिए। डेटा कैसे मिलेंगे? सी, डेटा, हमें कोई भी डेटा चाहिए तो ये कैसे मिलेंगे? तो ये जो है डैशबोर्ड पे हमें कुछ भी डेटा चाहिए, डिस्प्ले करना है मुझे डेटा। डिस्प्ले सी, यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करना है। उसकी जगह पे लिस्ट। राइट, तो ये डेटा जो मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। राइट, मुझे लिस्ट चाहिए, कॉपी, उसके अंदर चले जाओ। ओके,
यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल की जगह पे प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे लिख लो। टेबल का नाम, अपना टेबल का नाम कौन सा है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल, राइट। तो ये हमें यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट टेबल भी चाहिए। फ्रॉम डॉट मॉडल इनको प्रोडक्ट टेबल सी, तो अपना प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे आ गया। तो प्रोडक्ट टेबल ऑल डेटा चाहिए। क्वेरी रिजल्ट की जगह पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डेटा। ये डेटा को कहाँ ले जाएंगे हम? यहाँ पे, राइट। ये डेटा आ गया। डेटा में से हमें प्रोड मिलेगा, प्रोड में से हमें वो मिलेगा सभी लिस्ट। तो अभी नेक्स्ट यूआरएल करना है ये प्रोडक्ट लिस्ट। तो पाथ बनाओ, यहाँ पे लिख लो डिस्प्ले प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, राइट। प्रोडक्ट लिस्ट, यहाँ पे सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट, राइट। स्लैश स्लैश लिखो या नहीं लिखो चलेगा। व्यू डॉट प्रोडक्ट डिस्प्ले, राइट। यहाँ पे कॉमा नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। प्रोडक्ट लिस्ट कॉमा, राइट। ये अपना हो गया, राइट। इसकी जगह पे ये कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्ट, राइट। प्रोडक्ट लिस्ट पे जाना चाहिए, जंप करना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? प्रोडक्ट लिस्ट पे आना चाहिए। तो यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पे रीडायरेक्ट है ही ऊपर, तो प्रोडक्ट लिस्ट पे चला जाना चाहिए, राइट। प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। प्रोडक्ट लिस्ट पे चला जाना चाहिए। यहाँ पे उसको एज ये ओपन, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे HTTP रीडायरेक्ट, ओके। तो हमारा HTTP रीडायरेक्ट प्रोडक्ट पे आना चाहिए, ओके। सिर्फ हम ट्राई करते हैं प्रोडक्ट एंटर सो EMP लिस्ट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सो EMP लिस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये निकाल दो, प्रोडक्ट्स, इसको यहाँ पे कोमा, ये हमें निकाल दो, ओके। ओके, फॉर्म इज नॉट डिफाइंड, इसका फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्म नहीं है ऐसा बोल रहा है। ये सिंगल कोट में लिख लो, डबल में लिखोगे तो भी चलेगा, सिंगल में लिखो। स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो 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 हेलो, यस सर। ओके। अभी प्रोडक्ट लिस्ट आना चाहिए, आ गया। देखो हमारे जो टेबल में जो डेटा थे वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये करेक्ट है, ओके। तो यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट पे जंप करना है। अभी एक डेटा डालेंगे, राइट। जैसे इसको करते हैं, डेटा आना चाहिए। कोई भी हम यूज करते हैं जी राउटर, राउटर राउटर का 2 क्वांटिटी 300 रुपया, राइट, ओके। राउटर आ गया। सी, हमें जो भी आइटम डालते हैं वो हम लिस्ट में डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। तो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। उसकी जगह पे हम बूस्ट्रैप यूज करेंगे तो डेटा वो बूस्ट्रैप में आ जाएंगे। लेकिन हमने अब थोड़ा बहुत डेटा डिस्प्ले कैसे होगा वो देख लिया यहाँ पे। तो इसके लिए ऑल, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे टाइटल भी आप लिख सकते हो, टाइटल कोमा करके एक टाइटल असाइन कर दो, टाइटल कोलन, ओके। ये टाइटल हो गया। तो जब भी आप यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये टाइटल आ रहा है। तो टाइटल की जगह पे क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट डिस्प्ले। रिफ्रेश कर रहे हैं, रिफ्रेश, यहाँ पे टाइटल में क्या है? प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल आना चाहिए वहाँ पे। टाइटल टाइटल
वापिस रन करते हैं। एंड राउटर की जगह पे स्विच ओके, स्विच 5,000 रुपीज क्रिएट, स्विच आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, अभी भी टाइटल ही आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसके ऊपर क्या लिखा है, टाइटल, तो यहाँ पे उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा टाइटल, तभी डेटा वहाँ पे आएगी, राइट। जैसे कुछ भी पास करना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना। यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट डिटेल सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आज जो आपको मैंने डेटा इंसर्ट कैसे होते हैं, डिस्प्ले कैसे होते हैं, यहाँ पे का रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे स्विच भी आ गया, राउटर आएगा, पेन ड्राइव आ गया, और वो यहाँ पे यूआई पे दिख भी रहा है, राइट। यहाँ पे हमने टेबल अच्छी तरह से नहीं दिख बनाया है, तो इसकी जगह पे हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू 2, ये बॉर्डर के अंदर भी डेटा डिस्प्ले होंगे, राइट। तो देखो ये हमारा बॉर्डर में भी डेटा आ गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बन रहा है, राइट। तो उसके बाद ये उसको हम अच्छी तरह से भी कर सकते हैं, राइट। सी, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। यस यस सर। सर। Yes, तो sir. आज इतना इतना चलेगा ना? हेलो, हाँ सर, बहुत है। बहुत है ना? और अभी क्या करूँगा मैं, आपको ये डेटा, ये जो है ना कोडिंग, थोड़ा थोड़ा है ना, गीट हब पे भी मेरा, गीट हब जो मालूम है ना, गीट हब, राइट, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो ये प्रोजेक्ट पूरा। पहले हमने आज रिवाइज कर देता हूँ मैं आज, पहले हमने क्या बनाया, फर्स्ट थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने एक नॉर्मल वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद पहला कमांड कौन सा परफॉर्म किया, ये, राइट, जेंगो एडमिन। तो जेंगो एडमिन से क्या हुआ, ये बन गया, उसके अंदर मैनेज फाइल आ गई। पहले मैनेज फाइल ही थी, बाद में हमने माइग्रेशन किया तो डीबी एसक्यूलाइट फाइल आ गई, उसके अंदर एक क्या मैंने क्रिएट किया, पहले तो जेंगो इंस्टॉल करना था, उसके बाद ये कमांड परफॉर्म करना है, राइट। उसके बाद रन सर्वर करके हमने टेस्ट कर लिया कि जेंगो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, उसका ऐप का नाम दे दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐप का नाम, राइट। उसके बाद टेम्पलेट दिया, टेम्पलेट के अंदर ये इंडेक्स फाइल को कॉल करवाया। इंडेक्स फाइल कहाँ से कॉल करवाई हमने, व्यू में से जाके, राइट। व्यू में से पहला एक फंक्शन बनाया, ये पहले इंडेक्स व्यू, राइट। और उसके अंदर हमने पहले बनाया मॉडल, मॉडल, राइट। तो मॉडल के अंदर ये मॉडल बनाया हमने, मॉडल के बाद हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के बाद हमने इसको व्यू में क्रिएट किया, राइट, कैसे डिस्प्ले करना है सिंपल फॉर्म, राइट। और उसके बाद हमने यूआरएल बनाया, यूआरएल ऑलरेडी इसके अंदर था, तो ये यूआरएल प्रोडक्ट का यूआरएल हमने यहाँ पे प्लग किया, और ये यूआरएल यहाँ पे आ गया। तो हमारी 3 यूआरएल बनी। ये जो यूआरएल है वो कब कॉल होगा, जब डायरेक्टली रन होगा तब, राइट। हमारा पाथ डायरेक्टली रूट से रन होगा तब ये बनेगा। उसके बाद ये बैकएंड में होगा ऐड प्रोडक्ट, ये जब एक्शन पास करेंगे तो कहाँ पे ये यूज होगा, यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे एक्शन पास करवाया मैंने, राइट। एक्शन पास करवाएंगे तब ये बन जाएगा यहाँ पे, राइट। एक्शन जो भी इसके अंदर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्शन तुरंत कॉल होगा। तो जैसे ही एक्शन कॉल होगा, वो एक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा, राइट, ऐड प्रोडक्ट का, ये सब उसके अंदर कॉल होगा, राइट। पहले एल्स होगा तो सिर्फ बैंक फॉर्म ओपन होगा, और उसके अंदर डेटा होंगे तो ये जगह पे सेव होगा, राइट। पोस्ट जो अपन अपनी मेथड जो है पोस्ट है, उसके बाद रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट पोस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो फॉर्म में चली जाएगी। फॉर्म को वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद सेव करवाया, सेव करने के बाद उसको प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट पे रीडायरेक्ट किया। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या लिखा है, वो यहाँ पे एक मेथड है प्रोडक्ट लिस्ट, ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारी एक मेथड है डिस्प्ले प्रोडक्ट, राइट। वो डिस्प्ले प्रोडक्ट हमने कहाँ पे बनाया, ये यूआरएल में प्रोडक्ट लिस्ट जो है एक मेथड, ये मेथड, उसका नाम हमने यहाँ पे पास करवाया यहाँ पे, तो वहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया। तो ये जैसे ही रीडायरेक्ट होगा उसके अंदर जो भी फंक्शन है, राइट, उसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल किया है, डिस्प्ले प्रोडक्ट। तो ये डिस्प्ले प्रोडक्ट पे जंप करेगा, जो भी डिस्प्ले प्रोडक्ट में है वो हो जाएगा कॉल, राइट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट टेबल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, राइट। और ये यहाँ पे आके ये डेटा को
इसके अंदर जो प्रोडक्ट में अंदर जो भी डेटा है वो कहाँ पे चले जाएगा, डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे जाएगा। डिस्प्ले पे हमने क्या किया, डिस्प्ले एक लूप घुमाया फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट, उसके बाद उसके अंदर से जो भी मॉडल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट थे प्रोडक्ट क्लास के, वो यहाँ पे असाइन कर दिए डॉट ऑब्जेक्ट के साथ। राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? हेलो। हाँ सर। और हमने एक मेन काम क्या किया, एडमिन का एक क्रिएट यूजर सुपर यूजर क्रिएट किया। तो सुपर यूजर कैसे क्रिएट किया, यहाँ पे कोडिंग के अंदर हमने सुपर यूजर का नाम दे दिया, और सी इसके अंदर जाएंगे तो एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट सुपर यूजर में, तो सुपर यूजर में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। राइट, हम यहाँ पे कोई भी अपडेट करेंगे, मॉडल डिवाइस, डिवाइस डिवाइस, ओके डिवाइस, उसको सेव करेंगे ना, तो ये सेव सक्सेसफुली हो गया। देखो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो लिस्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट। राइट, देखो हमारी यूआरएल में कोई एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, इट इज द ब्यूटी ऑफ जेंगो। राइट, ये कोड इग्नाइटर जैसा ही है, पीएचपी के अंदर कोड इग्नाइटर होता है ना, वैसा ही है। तो ये हो गया। राइट, तो हमारा प्रोडक्ट भी जो डेटाबेस में है वो डिवाइस आ गया यहाँ पे। राइट, वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडिट डिलीट करेंगे, डेटा को एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो ये इस तरह से बाद में, उसके बाद क्या करेंगे, एडिट डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद एक टेम्पलेट, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आपको एक टॉपिक, मुझे अभी किसी ने असाइन नहीं, मैसेज नहीं किया है आपका कि क्या क्या है, मुझे मैसेज कर दीजिए आपका लिस्ट। हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट, हेलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो आप मुझे अपना वो बता देना, अपना लिस्ट बता देना मुझे।